Welcome बच्चों. Today we are solving exercise 5D of chapter 5 fractions of your class 6 Saras Agarwal book. The first question is saying define like and unlike fraction and give 5 example of each. Like fraction. Like fractions are those fractions, as you can see on your screen, fractions having same denominator is called like fraction. That means we have nothing to do with numerator. Numerator can be different, but the given fractions have same denominator. A group of such fractions will be called like fractions whose denominators are same irrespective of what their numerators are. Next is the unlike fraction. As you can see on your screen, the definition written is fractions having different denominator is called unlike fractions. So what here is happening is that any group of fractions which have different denominators, and obviously it can have different numerators. Generally, if you take a 4-5 fraction, that is called the group of unlike fractions, because neither they have the numerators same and neither nor they have the denominator same. Okay, moving forward toward the second question. Second question is saying convert given fractions 3 by 5, 7 by 10, 8 by 15 and 11 by 30 into like fractions. Now that we have just revised, because these definitions of like and unlike fraction, they are examples. You can see I have given here 5 examples as instructed in the question. I have given 5 examples of both, so you jot it down in your notes. Okay, I am proceeding forward towards the second question. In the second question, the question is saying that convert 5, 3 by 5, 7 by 10, 8 by 15 and 11 by 30 into like fractions. Now if you look onto all the 4 fractions given, they neither of them have the same denominator, and we know that if we are calling a group of fractions as a group of like fractions, their denominator should be equal. So to do so, what we have the process we have derived is that first we will take the LCM. As you know, LCM stands for lowest common multiple. So when we find out the lowest common multiple of the given denominators of the given fractions, the LCM is the number which we have to brought in all the fractions in the denominator. So here we have deduced the LCM of the given denominators 5, 10, 15 and 30. So here see, first we have divided with 2. When we have divided with 2, 5 will not divide by 2, so it is as it is. 5 2s are 10. Here 15 is not divided by 2, so we have written as it is. When we will divide 30 by 2, it will get divided by 15 times, that is 2 times 15 is 30. Next we have divided by 3. When we divide by 3, 5, these two 5 will not get divided. The last remaining 2, 15 will get divided by 3 times, so we have written, sorry, not 3 times, 5 3s are 15, so in 5 times they have been divided, so we have written 5 and 5 here. Now it's very simple, all the 5 are there, so we will divide by 5 and we will get the 111. So we multiply these 3 numbers in the left hand side in the margin. 2 multiply 3 multiply 5. So if you do this multiplication, you will get 30. Okay, now what LCM tells you that, because when you are converting the given fractions into like fraction, आपको जो है given fractions को like fractions में convert करना है, ठीक है. तो आप क्या चाहते हो कि आपके जो given denominator है उसका सारा denominator same denominator हो जाए, तभी तो like fraction मैं प्रूव कर सकूंगा ना उसको. तो वैसा करने के लिए हमको एक कोई नंबर तो पता होना चाहिए. अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम 20 कर लेते हैं, कोई बोलेगी मैं 25 कर लेती हूँ. तो आपको 25 करने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आएगा. जैसे अगर आप 15 को 25 करोगे तो कैसे करोगे बताओ, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा.
और किसी के हर केस में वो पॉसिबल भी नहीं है। एलसीएम जो है, एलसीएम एचसीएफ आपको छोटे क्लासेस में इसीलिए पढ़ाया गया है और इसका यूज आपको हायर क्लासेस में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एलसीएम का यूज करके बहुत ही आसानी से हमको वो नंबर मिल जाएगा जिसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे हर डिनोमिनेटर को उस नंबर में। देखो यहाँ 30 आया ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को कैसे हम 30 में कन्वर्ट कर देंगे। आपको एक बात मैं फिर से याद दिला दूँ कि यहाँ पे हम कन्वर्ट करने के लिए कुछ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम तो चाहते हैं डिनोमिनेटर बदले, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, फ्रैक्शन का इंस्ट्रक्शन रूल क्या है कि अगर आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किन्हीं में से एक प्लेस पे अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको दूसरा जो प्लेस है जहाँ पे आप नहीं भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी बाध्यता है कि आपको वहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो इनवैलिड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे कि नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोग नंबर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा। ये मैंने रिमाइंड इसलिए करा दिया क्योंकि अभी वो यूज होगा। तो अब देखो हमको पहला फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो 3/5। अब ये जो 3/5 है बेटा, इसमें हमको डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 30 लाना है। अब 5 के टेबल में आपको सोचना है कि कितने टाइम्स में 30 आता है, तो 5 6 30 आता है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने कर रखा है, 6 × 3 किया तो बेटा 18 आया, 5 × 6 किया तो बेटा 30 आया। तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन आ गया और देखो 30 डिनोमिनेटर में आ गया कि नहीं। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन पे चलो, 7/10। 7/10, अब डिनोमिनेटर में 10 है, अब 10 के टेबल में कितने टाइम्स में 30 आता है, तो 10 3 30, तो हम 3 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल के आया, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 30 हो तो वो 21/30 हो गया बेटा। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है तुम्हारे पास 8/15, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है। अब 15 के टेबल में आप अगर 30 खोजोगे तो जस्ट 15 2s ही मिल जाता है, 15 2s are 30, तो हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8 2 16 और 15 2 30। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है बेटा मेरे पास वो है 11/30। 11/30 देखोगे तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी 30 है, फिर भी मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया है, हालांकि आपको ये करना नेसेसरी नहीं है, आप ऐसा भी रख सकते हो। अब फाइनली देखो मेरे पास सारा नंबर जो है न्यूमरेटर 30 में आ गया, तो हम एक लाइन से उसको लिख दिए। देखो 18/30 यहाँ लिख दिया, फिर 21/30 यहाँ लिख दिया, फिर 16/30 यहाँ लिख दिया और लास्टली 11/30 लिख दिया। यहाँ पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं पूछा है तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। मोस्ट सजेस्टेड है कि जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में आप लिखो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, हाँ ठीक है। तो हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लिए। आप यहाँ पे एलसीएम का कैलकुलेशन देखो, 4 8 12 और 24 था तुम्हारा डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले लीस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे सारा ही 2 का मल्टीपल है, इसलिए सारा डिवीजन सारा डिवाइड हो जाएगा। 4 2 टाइम्स में हुआ, 8 4 टाइम्स में हुआ, 12 6 टाइम्स में हुआ, 24 12 टाइम्स में हुआ। फिर से सारा 2 का मल्टीपल है तो फिर से 2 से डिवाइड किए, 2 1 टाइम्स में हुआ, 4 2 टाइम्स में हुआ, 6 3 टाइम्स में हुआ और 12 6 टाइम्स में हुआ। अभी भी 2 का मल्टीपल ज़्यादा है, 1 3 है और 2 और 6 है जो 2 का मल्टीपल है, तो 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो 1 तो एज इट इज रहा, 2 को 2 डिवाइड किया 1 टाइम्स में तो 1 टाइम्स में, फिर ये 3 एज इट इज रहेगा, और ये 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स में तो वो 3 लिख दिया। अब 2 1 है और 2 3 है, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो यहाँ 1 1 1 1 फाइनली हमको मिल गया। और ये जो मार्जिन के बगल में, ये जो लाइन के बगल में सारा नंबर था उसको हम आपको जैसे पता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिज़ायर्ड एलसीएम मिल जाता है। तो 2 × 2 किए तो 4 हुआ, 4 × 2 किए तो 8 हुआ, 8 × 3 किए तो 24 हो गया।
अब हमको क्या मिल गया कि हमको जो गिवन फ्रैक्शंस है, ये चारों जो गिवन फ्रैक्शंस है, इनका डिनोमिनेटर जो सेम करना है, तो वो कौन सा नंबर ऐसा होगा जिस पे हम सेम करेंगे। तो 24 हमको सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में अब ऑब्टेन करवाना है। अब ये ऑब्टेन करवाना है बेटा, तो हम ये कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहला फ्रैक्शन लिखे 1/4 और 4 के टेबल में 24 का सर्च कर दिए। तो जब 24 का सर्च आप 4 के टेबल में करोगे तो आपको तुरंत ही पता चलेगा कि 4 से 24 होता है। तो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए 6 से, और हम रूल से अबाइड हैं, रूल से बाध्य हैं, तो हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो हमको फाइनली जो फ्रैक्शन मिला वो है 6/24। नेक्स्ट फ्रैक्शन देखोगे तो 5/8 है। 8 के टेबल में अगर आप 24 के लिए सर्च करोगे तो 8 3 जा 24 होता है। तो हमको डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो फाइनली जो फ्रैक्शन हमको मिलता है वो 15/24 मिलता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन जो देखोगे वो है 7/12। 12 के टेबल में कितने टाइम्स में 24 आएगा, तो 2 टाइम्स में। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली जो फ्रैक्शन मिला हमको वो मिला 14/24। अब लास्ट जो फ्रैक्शन बच रहा है आपके पास 13/24। तो इसमें तो डिनोमिनेटर 24 है ही, अब क्योंकि वहाँ पे 24 है ही, तो मैंने करके दिखा दिया है 1 से मल्टीप्लाई, हालांकि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसका जो हमको मिला है लाइक फ्रैक्शन में जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया है उसको एक समराइज फॉर्म में लिख दिया है 6/24, 15/24, 14/24, 13/24। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है, फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। तो आपको बताना है कि इसमें ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा या लेस देन का सिंबल लगेगा। ठीक है, तो 8/9, ठीक है, और 5/9। अब इसको मैंने आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, इसको विजुलाइज करने का क्या तरीका है कि 9 बॉक्स में से 8 बॉक्स भरा हुआ है। 8/9 का क्या मतलब है, 9 बॉक्स में से 8 बॉक्स भरा हुआ है। और 5/9 का क्या मतलब है, 9 बॉक्स में से 5 बॉक्स भरा हुआ है। तो कौन सा कार्टून बड़ा होगा। मान लो कि 9 बॉक्स एक कार्टून में है और 9 बॉक्स दूसरे कार्टून में है, और एक कार्टून में जो है 9 बॉक्स में से 8 बॉक्स फिल्ड है, मान लो पेंसिल से फिल्ड है, और दूसरे कार्टून में 9 बॉक्स में से 5 पेंसिल ही फिल्ड है। तो कौन सा ज़्यादा भारी होगा। 5 बॉक्स में ही पेंसिल फिल्ड है और उसमें 8 बॉक्स में पेंसिल फिल्ड है, तो ऑब्वियसली पहला फ्रैक्शन जिसमें कि जिसके कार्टून में 8 बॉक्सेस में पेंसिल फिल्ड है वो ज़्यादा बड़ा होगा, वो ज़्यादा भारी होगा, तो वो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो 9/10 और 7/10 है, तो ऑब्वियसली पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमको आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आएगा, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन होगा। देखो 3/7 है, 6/7 है, तो 3/7 छोटा है 6/7 से। 11/15 है, 8/15 है, तो 11/15 बड़ा है। 6/11 है, 5/11 है, सिंपल सा है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा है वो बड़ा है। तो देखो यहाँ 6/11, 5/11, 11 कॉमन है डिनोमिनेटर, तो 6 बड़ा है न्यूमरेटर में, तो वो बड़ा हो गया। 11/20 है, 17/20 है, तो न्यूमरेटर में 11 है और 17 है, तो 17/20 बड़ा होगा ऑब्वियसली। अब फिफ्थ नंबर देखो बेटा, फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। यहाँ पे क्या बोलता है, fill in the placeholders with the correct symbol or less than with the correct symbol less than or greater than। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या हो जाता है कि यहाँ पे सर डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो देखो अब डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, इसमें आपको जो है क्या करना है, एलसीएम निकालना नहीं है। जब भी 2 फ्रैक्शन है तो एलसीएम मत निकालो, उसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको पहला फ्रैक्शन में ऊपर नीचे वो नंबर मल्टीप्लाई करना है तो दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, यानी कि 3/4 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 5, और दूसरा फ्रैक्शन में वो नंबर मल्टीप्लाई करना है जो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, यानी दूसरे फ्रैक्शन में ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से।
देखो मैंने यहाँ पे वही करके रखा है। 3/4 में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में 15 आएगा और डिनोमिनेटर में 20 आएगा। 3/5 में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/20 आएगा। अब तुम देख लो, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा है, तो पहला फ्रैक्शन 15/20 है और दूसरा 12/20 है, तो ऑब्वियसली पहला फ्रैक्शन बड़ा है तो ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे लगेगा। अब 7/8 है और 7/10 है, यहाँ पे इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 7/8 को ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 70/80 आ गया, और 7/10 में ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 56/80 आ गया। ठीक है, तो 70/80 है, 56/80 है, तो ऑब्वियसली 70/80 बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, 4/11 है और 4/9 है, तो 4/11 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई किए तो देखो वहाँ पे मैंने लिख रखा है 36/99, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 11, तो 4/9 को 11 से मल्टीप्लाई किए ऊपर और नीचे तो देखो 44/99 आ गया। अब यहाँ पे क्लियरली है कि ये जो है ये छोटा है, यानी 4/11 छोटा है और 4/9 बड़ा है, तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल होगा। फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ नंबर में 8/11 है और यहाँ पे 8/13 है। अब क्या करते हैं हम, 8/11 में 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8/11 में ऊपर 13 से मल्टीप्लाई किए तो 104 आया, नीचे मल्टीप्लाई किए तो 143 आया। अब 8/13 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88/143 आएगा। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि 104/143, 88/143, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। अब यहाँ देखो 5/12 है और 5/8 है, ठीक है बेटा, तो 5/12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो 40/96 आया, और 5/8 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 60/96 आया। क्लियरली है कि पहला फ्रैक्शन 5/12 जिसका 40/96 लिखा हुआ है तो वो छोटा है सेकेंड फ्रैक्शन से, तो लेस देन का सिंबल लगेगा। वैसे ही 11/14 है, बताया इसमें मल्टीप्लाई किए 15 से ऊपर नीचे तो 165/210 आया, और 11/15 को मल्टीप्लाई किए फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से तो उसका 14 आया, तो 154/210, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। यहाँ पे जो तुम्हारा 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड है उसके लिए सिमिलर जो है इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। कंपेयर द फ्रैक्शन गिवन बिलो, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करते हो, अगर मैं बोलूँ कि दो दोस्त हैं सोमू और मोनू, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, कंपेयर कैसे करते हो, या तो आप बोलोगे कि उनका हाइट सोमू का हाइट मोनू से बड़ा है, या बोलोगे सोमू का वेट मोनू से बड़ा है। तो जब भी आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करो तो आप कैसे कंपेयर करोगे, छोटा या बड़ा से, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल से आप कंपेयर करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस का पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। उसके बाद आप ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल लगा दोगे। वहीं यहाँ पे करके मैंने रखा है, देखो पहला फ्रैक्शन लिया 4/7। अब 4/7 आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब दो ही फ्रैक्शन हो तो सिंपल है, पहले फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और सेकेंड फ्रैक्शन में पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। तो वही मैंने कर रखा है। यहाँ देखो 4/5 में सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया यानी 7 मल्टीप्लाई किया तो 7 4 जा 28 हुआ, 5 7 जा 35 हुआ, ठीक है। अब 5/7 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/35 हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले इसके ही फॉर्म में लिख दिया कि 28/35, यानी कि पहला फ्रैक्शन का जो हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो वो छोटा हो गया, सॉरी बड़ा हो गया दूसरे फ्रैक्शन से। तो डेफिनेटली जो तुम्हारा ये गिवन फ्रैक्शन था, यानी कि ये अनलाइक फॉर्म जो था इस फ्रैक्शन का, वो भी बड़ा होगा तुम्हारे दूसरे फ्रैक्शन से। 7 नंबर देखो, 7 नंबर में भी वही किया है मैंने। यहाँ पे देखो 3/8 है बेटा और 5/6 है, तो 3/8 फर्स्ट फ्रैक्शन को किसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड फ्रैक्शन के। ये तभी काम करेगा जब आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तभी काम करेगा जब दो ही फ्रैक्शन दिया हुआ। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब दो ही फ्रैक्शन दिया हुआ है।
3 भी हो गया तो आपको एलसीएम निकालना ही होगा। ये ट्रिक 2 ही में काम करेगा, 3 में मत लगा देना, गलत हो जाएगा आंसर। उसमें थोड़ा सा मेहनत कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। ओके, 3/8 एंड 5/6। तो देखो 3/8 है बेटा और 5/6 है, तो 3/8 पहला फ्रैक्शन है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो उसको हम लोग सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। तो ऊपर नीचे यहाँ देखो 3/8 को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किए बेटा, तो हमको फ्रैक्शन क्या मिला? 18/48। वैसे ही सेकेंड फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? सेकेंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो 5/6 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40/48 आया। तो यहाँ पे 18/48 लेस देन हो गया 40/48 से। इसका मतलब क्या है? इनका जो अनलाइक फॉर्म था यानी 3/8 इज लेस देन 5/6। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन इज सेइंग 7/11 एंड 6/7। वी हैव टू कंपेयर दीज टू फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को 7/11 और 6/7 दिया हुआ है। तो 7/11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 7/11 को हम सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/11 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब देखो 7 7 49 हो गया और 11 7 77 हो गया। 6/11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 11 से। तो 66/77 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्लियरली है कि पहला फ्रैक्शन 49/77 यानी कि ये जो दोनों फ्रैक्शन का हम लोग लाइक फॉर्म में निकाले हैं, तो 49/77 इज लेस देन 66/77। तो हम यहाँ कंक्लूड क्या करते हैं? ये जो हमारा अनलाइक फॉर्म में था 7/11 और 6/7, तो 7/11 जो है वो लेस देन है 6/7 से। आई एम सॉरी बेटा, बैकग्राउंड में जो ये आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्योंकि आज 15 अगस्त को मैं शूट कर रहा हूँ, इसी कारण से आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। नाइन्थ क्वेश्चन देखो 5/6 एंड 9/11। तो 5/6 है और 9/11 है। तो देखो 5/6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। 11 जो है क्या है? सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। तो 5/6 को जब 11 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या मिला? 55/66। अब जो 9/11 है बेटा, 9/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी 6 से। तो 9/11 को जब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54/66 हुआ। तो यहाँ हम कंक्लूड क्या किए कि 55/66 इज ग्रेटर देन 54/66। तो हम यहाँ क्या फिर कंक्लूड कर देंगे फाइनली कि जो अनलाइक फॉर्म में 5/6 जिसका 55/6 हम लोग लाइक फॉर्म में निकाले थे वो 9/11 से छोटा है। कंटिन्यूइंग द सेम थिंग 10th क्वेश्चन में देखो 2/3 है और 4/9 है। तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर और नीचे 9 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखा है मैंने। तो 9 2 18, 3 9 27। फिर 4/9 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 9 3 27। तो हमारे पास फाइनली क्या मिलता है? 18/27 इज ग्रेटर देन 12/27। तो इसका मतलब क्या है? पहला फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा है तो ग्रेटर देन का सिंबल हम लोग लगा दिए, यानी कि 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9। अब ध्यान रखना, आप ऐसे आंसर मत लिख देना, आपको ये लिखना मस्ट है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है या आपको हाफ ही नंबर मिलेगा जो टोटल नंबर है आपको उस क्वेश्चन का, क्योंकि आपको फाइनली ये लिखना पड़ेगा। वो तो लाइक फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, ओरिजिनल फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें ही आपको आंसर देना है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स या जो भी मार्क्स सर काटना चाहें काट सकते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो 11th नंबर देखो 6/13 एंड 3/4, ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 6/13 में जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 4, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24/52 आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो फ्रैक्शन है 3/4, उसको हम पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 13, 4 × 13, तो फाइनली क्या आ गया? 39/52। अब 24/52 इज ऑब्वियसली लेस देन 39/52। तो अनलाइक फॉर्म में जो ओरिजिनल फॉर्म में दिया हुआ था उसमें क्या लिखेंगे कि पहला फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से छोटा है, तो वहीं यहाँ पे लिख के दिखाया है मैंने 6/13 इज लेस देन 3/4।
Moving forward toward the next question, toward the 12th question. 12th question is saying 3/4 and 5/6. ठीक है बेटा, तो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 3/4 को मैं सेकेंड फ्रैक्शन यानी 5/6 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है 3 × 6 / 4 × 6, तो फाइनली रिजल्ट क्या आता है 18/24। फिर जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। कर रखा है मैंने, देखो यहाँ 5 × 4 20 आया, 6 × 4 24 आया। ऑब्वियसली क्लियरली 18/24 जो है वो लेस देन है 20/24 से, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? ओरिजिनल फॉर्म में 3/4 और 5/6 जो फ्रैक्शन दिया हुआ था, यानी कि पहला फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से छोटा आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3/4 इज लेस देन 5/6। ऐसे ही 13 क्वेश्चन देखो। 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन है 5/8 एंड 7/12। ठीक है, तो 5/8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर नीचे 12 से। तो 5 × 12 60 आता है, 8 × 12 96 आता है। ये पहला फ्रैक्शन का आ गया। दूसरे फ्रैक्शन यानी 7/12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी 7/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो 7 × 8 करेंगे तो बेटा 56 आएगा। 12 × 8 करेंगे तो बेटा 96 आएगा। और फाइनली हम क्या कंक्लूड करेंगे कि 60/96 इज ग्रेटर देन 56/96, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकेंड फ्रैक्शन, यानी दैट मीन्स 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। नेक्स्ट सी 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन इज सेइंग यू हैव टू कंपेयर 4/9 एंड 5/6। तो 4/9 और 5/6 को कंपेयर करने के लिए वही प्रोसीजर जो अभी तक हम लोग यूज़ किए हैं वो करेंगे। 4/9 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, वो क्या है 6। तो 4 × 6 24 हो गया, 9 × 6 54 हो गया। ठीक है ना। अब सेकेंड फ्रैक्शन क्या है? सेकेंड फ्रैक्शन जो है वो 5/6 है। 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 5 × 9 45 देता है, 6 × 9 54 देता है। क्लियरली यहाँ पे क्या हो गया कि फर्स्ट फ्रैक्शन 24/54 इज लेस देन 45/54 द सेकेंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ओरिजिनली हम क्या लिख देंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन जो 4/9 था इज लेस देन सेकेंड फ्रैक्शन जो ओरिजिनली था 5/6। 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन में सेइंग कि हमको कंपेयर करना है 4/5 एंड 7/10। तो 4/5 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, वो क्या है 10। तो 4 × 10 किया तो 40 मिला, 5 × 10 किया तो 50 मिला। अब सेकेंड फ्रैक्शन क्या है? 7/10। 7/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 7 × 5 35, 10 × 5 50। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं यहाँ पे? 40/50 जो है वो ग्रेटर देन है 35/50 से, यानी कि ओरिजिनली जो पहला फ्रैक्शन है 4/5 वो ग्रेटर देन है सेकेंड फ्रैक्शन 7/10 से। ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन में क्या बोला है? 7/8 और 9/10। 7/8 और 9/10। तो 7/8 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 10 से। तो हमको 7 × 10 क्या मिल गया? 70। और 8 × 10 क्या मिल गया? 80। तो फाइनली हमको फ्रैक्शन क्या मिला? 70/80। अब सेकंड जो फ्रैक्शन है वो है 9/10। उसको ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी 8 से। तो 9 × 8 करेंगे तो बेटा 72 आया, और 10 × 8 करेंगे तो बेटा 80 आया। तो क्लियरली यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि 70/80 यानी कि पहला फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द सेकेंड फ्रैक्शन 72/80। तो ओरिजिनली भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 7/8 जो पहला फ्रैक्शन था इज लेस देन द सेकेंड फ्रैक्शन 9/10। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। यहाँ देखो 17th क्वेश्चन इज सेइंग 11/2 एंड 13/15। ठीक है। तो यहाँ पे 11/12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हेन यू विल डिवाइड 11 × 15, यहाँ पे देखो मैंने साइड में कर रखा है, तो 165 मिलेगा आपको। फिर 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी साइड में मैंने कर रखा है, तो 180 मिलेगा। नेक्स्ट आप जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 12 से। तो 13 × 12, यहाँ देखो यहाँ पे कर रखा है 156 आएगा, तो यहाँ 156 लिखा। और 15 × 12 तो यहाँ पे कर ही रखा है, बस ये कम्यूटेट कर दिया है, बस चेंज कर दिया है डायरेक्शन। तो 180 इसका भी आंसर होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हुआ? 165 जो है 165/180 इज ग्रेटर देन 156/180। तो हम ओरिजिनल फॉर्म में क्या लिख देंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकेंड फ्रैक्शन, दैट इज 11/12 इज ग्रेटर देन 13/15। यहाँ पे 18th नंबर में आपको जो है
18 नंबर ऑनवर्ड्स जब तक इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होता उसके लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, किसी भी नंबर को आप, मतलब कि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो आप लोगों ने अभी जो पढ़ा है वो नंबर का असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है। तो असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े नंबर के क्रम में रखना, के ऑर्डर में रखना, और डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे के ऑर्डर में रखना। अब फ्रैक्शन का असेंडिंग डिसेंडिंग भी वैसा ही है, सिंपल। बस आपको जो आप बोलते हो ना छोटे से बड़े नंबर के रो में या ऑर्डर में रखना, तो आप वहाँ नंबर हटा के आप क्या फ्रैक्शन यूज करोगे। अब क्या बोलोगे, छोटे से बड़े फ्रैक्शन के ऑर्डर में रखोगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, बड़े से छोटे के ऑर्डर में रखोगे तो उसको डिसेंडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो गिवन फ्रैक्शन है वहाँ पे क्या है, 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है और 7/8 है। सर यहाँ पे तो कैसे पता करें, क्योंकि न्यूमरेटर भी इक्वल नहीं है और डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं है, और न्यूमरेटर अगर इक्वल हो भी जाता तो भी आप पता नहीं कर सकते। पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको डिनोमिनेटर जानना होता है, तभी ना पता चलेगा कि अगर मान लो सबका 5 हो जाए, तभी ना पता चलेगा 5 खाने में से एक खाना भरा हुआ है, मतलब 5 बॉक्स में से एक बॉक्स भरा हुआ है या 5 बॉक्स में से 6 बॉक्स भरा हुआ है। जब आपको मैंने पहले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझाया कि फ्रैक्शन जो आप लिखते हो दिस नंबर बाय दिस नंबर, उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। आप वो फिगर वाला किए थे ना कि 3/5 को रिप्रेजेंट करो ये फिगर में, बस उसमें आपको जो कंसेप्ट वहाँ पे बना हुआ है उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो हम, मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी तक आप प्रीवियसली भी बहुत सारे क्वेश्चन में ये कर चुके हो कि जब भी किसी को कंपेयर करना रहता है या ये पता लगाना होता है कि कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है या कौन सबसे छोटा फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, वी मेक the denominator equal of all the given fraction, we make the denominator equal। तो यहाँ पे एक का जैसे 2 है डिनोमिनेटर, एक का 4 है, एक का 6 है और 8 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इससे भी पहले आप लोगों ने कर रखा है कि वो सारे डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम लिए हैं, आप देखो साइड में 2, 4, 6, 8, यह सारा नंबर लिख दिया। अब सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड दिया, 2 से डिवाइड दिया तो 2 1 टाइम्स में गया, 4 2 टाइम्स में गया, 6 3 टाइम्स में गया और 8 4 टाइम्स में गया। बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड दिए तो 1 तो एज इट इज रहा, 2 1 टाइम्स में गया, 3 एज इट इज रहा, डिवाइड नहीं होगा, और 4 को हम लोग डिवाइड देंगे 2 से तो 2 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से दिए तो अब देखो ये सारा 1 तो एज इट इज रहेगा, 3 भी डिवाइड नहीं होगा तो वो भी एज इट इज रहेगा, 2 डिवाइड हुआ तो 1 टाइम्स में गया। अब 3 से दिए तो फाइनली 1 1 1 आ गया। अब जब मल्टीप्लाई किए साइड वाले नंबर को, 2 × 2 तो 4 हुआ, 4 × 2 किए तो 8 हुआ, 8 × 3 किए तो 24 हुआ। तो फाइनली क्या लिखे, एलसीएम इज 24। अब क्या कर रहे होंगे, पहले फ्रैक्शन को लो। अब हमको पता चल गया कि डिनोमिनेटर हमको क्या बनाना है, हमको डिनोमिनेटर 24 बनाना है। तो हम पहले फ्रैक्शन को लिए, 1/2 को लिए, उसमें क्या किए, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। आपको याद हो मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि जब भी आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने की इच्छा रखते हो तो आपकी बाध्यता क्या है कि आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को तो डिनोमिनेटर में करना था, लेकिन रूल के अनुसार हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों 12 में मल्टीप्लाई किए तो हमको ऊपर क्या मिला, 1 × 12 इज 12/24 मिला, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक जो है मल्टीप्लाई का साइन मिस हो गया है, 2 × 12 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन 3/4 की तरफ चले तो उसमें भी ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 12 से क्यों मल्टीप्लाई करें ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं, हम भूल गए। तो 2 के टेबल में हम लोग सर्च किए कि 24 कितने टाइम्स में आता है। अब आप लोग को तो जनरली 10 तक आता है, तो आप क्या करो, आपको थोड़ा सा रिवर्स दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जब ऐसा हो कि आपको टेबल में ना मिले तो 2 को आप 24 से डिवाइड लगा दो। आपको तो नहीं पता है ना 10 से आगे 2 का टेबल, कोई बात नहीं। आप क्या करो कि वो जो नंबर है एलसीएम वाला नंबर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा दो। डिवाइड लगाना तो आता है ना, बहुत ही आसान डिवीजन है।
तो डिवाइड लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। डिवाइड लगा के जरूर देखना, अगर आप ये डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 12 मिला, इसीलिए ऊपर नीचे 12 किए। 12 करने से क्या हुआ, मेरा डिनोमिनेटर 24 हो गया। न्यूमरेटर कुछ भी हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 4 था। अब 4 के टेबल में हम 24 खोजेंगे तो हाँ ये मिल जाएगा, 6 टाइम्स में मिलता है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 18/24 है। नेक्स्ट फ्रैक्शन 5/6 में जाओगे तो 6 के टेबल में तुम सर्च करोगे तो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा तुमको 4 टाइम्स में। तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो तुमको आंसर क्या मिला, 20/24। देखो सबका डिनोमिनेटर 24 यानी कि लाइक फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो लास्ट जो तुम्हारे पास फ्रैक्शन बचा है 7/8, तो 8 के टेबल में तुमको 24 फाइंड करना है। तो 8 3 जा क्या होता है 24, तो ऊपर नीचे क्या किए 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 7 3 जा 21, 8 3 जा 24। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम जो है सबसे छोटा फ्रैक्शन ढूंढेंगे। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कैसे ढूंढेंगे सर, डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, और न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा देखो 12/24 है, 18/24 है, 20/24 है, 21/24 है। तो ऑब्वियसली सबसे छोटा न्यूमरेटर तो 1/2 वाले का जो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 12/24 वही ना आएगा। तो 12/24 यहाँ मत लिखना, यहाँ पे उसका ओरिजिनल फॉर्म यानी 1/2 मल्टीप्लाई करने से पहले जो उसका रूप था वही लिखना है। तो यहाँ 1/2 लिखे, उसके बाद क्या 12 के बाद 18 आता है तो 3/4 लिखे, 5 फिर उसके बाद 20 आता है तो 5/6 लिखे, उसके बाद 21 आता है तो उसको 7/8। मतलब कि ये अरेंज करके ही दिया था। अगर तुम ऐसे भी लिख देते तो तुम्हारा सही होता आंसर, लेकिन तुमको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि तुम पूरा प्रोसेस, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है स्कूल में, इसलिए तुमको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो। 19 क्वेश्चन में देखो वही करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हम क्या किए 3, 6, 9 और 18 का क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए। यहाँ पे देखो साइड में यहाँ पे लिया हुआ है, और यहाँ पे एलसीएम कितना आया मेरे पास 18 आया, ठीक है। आप यहाँ कैलकुलेशन देख सकते हो। उसके बाद हम लोग को पता चल गया कि डिनोमिनेटर में हमको क्या लाना है, डिनोमिनेटर में हमको 18 लाना है, ठीक है। तो अब पहला फ्रैक्शन लिए 2/3 यहाँ पे लिख रखा है। अब 3 के टेबल में हम 18 फाइंड करेंगे तो 6 टाइम्स में मिलेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमको रिजल्ट क्या मिला 12/18। अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है बेटा वो है 5/6। 6 के टेबल में 13 के लिए सर्च किए तो 3 टाइम में मिलेगा, तो ऊपर नीचे हम क्या किए 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15/18। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/9, 7/9 है, ठीक है, 7/9 है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कि 18 आ जाए, बहुत ही सिंपल है। अगर तुमको टेबल आता है तो 9 2 ही 18 होता है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 14/18 हो गया। ऐसे ही 11/8 है, क्या है 11/8 11/18 है, सॉरी 11/18 है, तो ये तो दिया ही हुआ है तो एज इट इज रहेगा। अब हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो देखो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, ये है, तो 2/3 इसका जो नहीं सॉरी 12 नहीं है, यहाँ पे 11 भी है, इसलिए ये सबसे छोटा हो गया, तो 11/18 इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखना है, लेकिन ये तुमको नहीं लिखना है यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम था, इसलिए ये लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये 12/18 है और इसका ओरिजिनल फॉर्म 2/3 है, ध्यान रखना। तो 11/18 इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखे, उसके बाद 12 था उसका ओरिजिनल फॉर्म 2/3 था तो 2/3 लिखे, ठीक है। उसके बाद 14 था तो 7/9 लिखे, उसके बाद 15 सबसे बड़ा था तो 5/6 लिखे। अगला क्वेश्चन में भी वही करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज मतलब बैठाना। तो 28 नंबर में देखो 4 फ्रैक्शन फिर से दिया है, हम लोग उसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या मेरे पास आया 90। कैलकुलेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो अब जो पहला फ्रैक्शन है मेरे पास वो है 2/5। पहला जो फ्रैक्शन है वो मेरे पास क्या है 2/5। अब 2/5 में 5 से हमको
क्या कौन सा नंबर डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए। सर 5 के टेबल जो हम लोग मैक्सिमम जानते हैं वो 5, 10 या 50 जानते हैं। अब हम 90 कैसे पता करें? कोई बात नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था और आपको मैंने क्या बताया था उसका मेथड, कि आप उस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड कर दो। 5 को आप 90 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। ठीक है, अब 18 मिल गया, उसी से नंबर से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, आपका डिनोमिनेटर जो है 90 हो जाएगा। तो 5 को 18 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 90 मिलेगा, 18 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे आपको 36 मिलेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? 36/90। अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है तुम्हारा, नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो 7/10 है। क्या है? 7/10। अब 7/10 में डिनोमिनेटर में 10 है और लाना हमको डिनोमिनेटर में 90 है। बहुत ही आसान है, 10 का टेबल सबको याद रहता है। 10 9 जा क्या होता है बेटा? 10 9 जा क्या होता है? 90 होता है। तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 9 जा 63 होता है और 10 9 जा 90 होता है। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है बेटा 11/15। 15 के टेबल में 19 कब आता है? 4 टाइम्स में आता है या 6 टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में आता है। तो हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 66। ये भी 11 का टेबल बहुत आसान है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 90। नेक्स्ट जो लास्ट फ्रैक्शन है वो है 17/30। अब 30 में क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि 90 आ जाए? तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51, 33 जा 90। तो हम अब क्या करेंगे? अब हम अरेंज करेंगे किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे बेटा? तो न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 51 है, 66 है, 36 है, 63 है। तो कौन सा सबसे छोटा है? 2/5 सबसे छोटा है, क्योंकि उसका जो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो न्यूमरेटर 36 है, तो 2/5 लिख दिए। उसके बाद देखो 51 सबसे छोटा है, उसका ओरिजिनल फॉर्म था 17/30, वो लिख दिए। उसके बाद 7/10, 63/90 छोटा है, उसका ओरिजिनल फॉर्म था 7/10, वो लिख दिए। और लास्टली क्या लिख दिए? 11/15। नेक्स्ट देखो 21 नंबर, देखो 21 नंबर में भी हमको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं? अब यहाँ हम क्या करते हैं कि जितना भी डिनोमिनेटर है 4 8 6 3 32, 4 8 16 32, इन सबों का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबों का एलसीएम लेके यहाँ पूरा कैलकुलेशन करके रखा है। आप देख लो एलसीएम क्या आया? 32। ठीक है, 32 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमको वो नंबर मिल गया जिसको हमको डिनोमिनेटर में लाना है, जिसको हमको डिनोमिनेटर में लाना है। तो हम पहला फ्रैक्शन लिए 3/4। हाँ, यहाँ पे पहला फ्रैक्शन लिए 3/4 और उसके बाद क्या किए? 4 के टेबल में 32 फाइंड करने की कोशिश किए। तो 8 टाइम्स में हमको 32 मिल गया, तो ऊपर नीचे जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 8 3 जा 24 हो गया और यहाँ 8 4 जा 32 हो गया। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है 7/8। अब 7/8 में डिनोमिनेटर में हमको 32 चाहिए। तो 8 में मैं कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं कि 8 जो है 32 बन जाए? तो 8 4 जा 32 होता है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 4 जा 28, 8 4 जा 32। ठीक है, अब 11/16 है थर्ड फ्रैक्शन। 16 के टेबल में 32 कितने बार में आता है? बहुत आसान है, 16 2 जा ही 32 होता है। तो 16 2 जा 32, 11 2 जा 22। ठीक है, लास्ट फ्रैक्शन तुम्हारा 23/32 था, एज इट इज रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो 32 है ही। अब देखो सबसे छोटा फ्रैक्शन इसमें कौन सा है? सबसे छोटा फ्रैक्शन इसमें 22/32 है, तो 11/16 लिख दिया इसका ओरिजिनल फॉर्म। उसके बाद 23/32 है, तो 23/32 उसका वही फॉर्म है, दोनों सेम ही है। उसके बाद 24/32 है, तो उसका 3/4 लिख दिए और लास्टली 7/8 है। ठीक है, 22nd क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
आपको गिवन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े फ्रैक्शन से छोटे फ्रैक्शन के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वैसे ही हम लोग सारा फ्रैक्शन का पहले जो है डिनोमिनेटर सेम करेंगे, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कर रखा है। तो यहाँ पे जितना भी डिनोमिनेटर है 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, उसका मैंने यहाँ पे एलसीएम ले रखा है। आप कैलकुलेशन देख लो, एलसीएम लेके कितना आया 24। अब 24 आ गया बेटा मेरा एलसीएम। तो पहले फ्रैक्शन को मैंने लिया 3/4। अब 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 24 आता है बेटा? 6 टाइम्स में। तो हम डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किए, इसीलिए न्यूमरेटर में भी करना होगा क्योंकि फ्रैक्शन का रूल है। तो ये इसका आंसर कितना आ गया 18/24। अब क्या हुआ देखो, सेकेंड फ्रैक्शन हम लोग ने लिया 5/8। 5/8 में डिनोमिनेटर में 8 था, लाना क्या है 24 लाना है, हाँ है ना बेटा। तो 8 के टेबल में 24 कब आता है? 8 3 जा 24 होता है। तो 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि डिनोमिनेटर में किया इसीलिए न्यूमरेटर में भी किया। तो तुम्हारे पास फाइनल जो आंसर मिला वो 15/24 मिला। ऐसे ही जो तुम्हारा थर्ड फ्रैक्शन है बेटा 11/12, 11/12 में भी हम डिनोमिनेटर देखे, डिनोमिनेटर था 12, हमको लाना क्या है 24। तो 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है बेटा? 2 टाइम्स में। तो हम लोग डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है इसीलिए न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर क्या आता है मेरे पास 22। 11 2 ज़ा 22, 12 2 ज़ा 24। तो फाइनल क्या आया 22/24। अब देखो लास्ट जो फ्रैक्शन है मेरे पास 17/24। क्या है 17/24। तो 24 तो यहाँ ऑलरेडी है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखो यहाँ आंसर जो मैंने लिखा है ये उल्टा लिखा है, मतलब कि सबसे बड़ा इधर है, सबसे बड़ा इधर है, लेकिन ये भी एक लिखने का मेथड है। इससे क्या पता चलता है, मैंने लेस देन का सिंबल लगाया हुआ है। लेस देन का सिंबल लगाया हुआ है तो इससे क्या होता है, ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है। आप इसके अपोजिट क्या लिख सकते हो, इसको मतलब कि उल्टा करके लिख दोगे कम आप दे के, तो वो भी सही होगा। ये भी लिखने का आदत है, अब आपको ही ऐसा लिखने का आदत डालना होगा, ठीक है। आप असेंडिंग ऑर्डर वाले में भी ऐसे ही कर सकते थे, उसमें क्या करते ये उसमें भी ऐसे ही लेस देन का सिंबल लगा के डिनोट कर सकते थे। अब देखो 23rd क्वेश्चन में क्या है, देखो 7/9 है, 5/12 है, 11/18 है, 17/36 है, ठीक है ना बेटा। इसका डिनोमिनेटर क्या है 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। तो उसका एलसीएम मैंने यहाँ ले रखा है। इसका कैलकुलेशन आप पूरा देख लो, एलसीएम कितना आया 36, ठीक है। पहला फ्रैक्शन ले लिया 7/9, 9 के टेबल में 36 कब आता है तो 4 टाइम्स में आता है सर। तो डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए न्यूमरेटर में भी कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 28/36। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है 5/12। 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, इसलिए न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल आंसर क्या मिला 15/36। अब जो थर्ड फ्रैक्शन है तुम्हारा 11/18, तो 18 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे किया इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या मिला 22/36। अब देखो 17/36, यहाँ तो 36 ऑलरेडी है इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। अब वैसे ही हम लोग ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, लेकिन क्योंकि ये लेस देन का सिंबल लगाया है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर को ही डिनोट कर रहा है। ये सबसे बड़ा नंबर है, आप देख लो 7/9 में 28 है और 28 से बड़ा न्यूमरेटर किसी में नहीं है। 11/18 देखो 22 है और वो इससे छोटा है 28 से। उसके बाद जो सबसे छोटा है उससे 22 से छोटा है वो 17, तो 17/36 यहाँ लिखा हुआ और सबसे छोटा है 5/12। तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर को ही डिनोट कर रहा है, लेकिन एक डिफरेंट तरह का लिखने का मेथड है।
इसमें मैंने कुछ अलग इसलिए दिखा दिया आपको क्योंकि बहुत जगह बहुत सर आपको ऐसे भी बता सकते हैं, तो आपको दोनों मेथड असेंडिंग ऑर्डर में अब मैंने आपको एकदम कॉमन मेथड बताया जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, कॉमा दे के लिखते हो, तो लेकिन ये मेथड भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। तो 24 क्वेश्चन में भी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन करते हैं, सेम करते हैं। तो 3, 5, 10 और 15 का यहाँ एलसीएम मैंने ले रखा है। इसका एलसीएम कितना आया बेटा, इसका एलसीएम 19 आया, यहाँ लिखना मैंने भूल गया, इसका एलसीएम 90 आया। देखो 3 × 2 6 और 5 6 30 और ये 3 90, ठीक है। तो अब देखो पहला फ्रैक्शन लिया 2/3, 2/3 में डिनोमिनेटर क्या है 3, 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 90 आएगा सर, 3 का टेबल हम लोग को तो 3 10 30 तक ही आता है, तो 90 से 3 को डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगाओगे तो कितने टाइम्स में आएगा 30 टाइम्स में। तो डिनोमिनेटर में 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए न्यूमरेटर में भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है। इसीलिए फाइनल आंसर क्या आया 60/90। सेकेंड फ्रैक्शन लिया 3/5 बेटा। अब 5 के टेबल में 90 कितने टाइम्स में आता है सर, हमको नहीं पता क्योंकि 5 10 50 तक ही हमको टेबल आता है। कोई बात नहीं, 90 को किससे डिवाइड कर दो, 90 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 से जब आप डिवाइड दोगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 18 मिलेगा। यानी वो क्या बोल रहा है आपको कि आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग न्यूमरेटर में किए इसलिए डिनोमिनेटर भी करना पड़ा। तो फाइनल जो आंसर मिला मुझे वो 54/90 मिला। थर्ड जो फ्रैक्शन है वो 7/10 है। अब 10 के टेबल में 90 कितने टाइम्स में आता है, बहुत ही आसान है 9 टाइम्स में। इसीलिए डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई किए, 9 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किए, इसीलिए हमको न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो 63/90 आएगा। अब 15 जो लास्ट फ्रैक्शन है 8/15, उसका डिनोमिनेटर क्या है 15। 15 के टेबल में 90 कितने टाइम्स में आता है, बहुत ही आसान है, 15 6 90 होता है। तो हम लोग डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में किया इसलिए न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, मजबूरी है। इसीलिए आंसर कितना आया 48/90। अब देखो वही जो नया प्रेजेंटेशन है डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखने का, उसी में मैंने ये लिख रखा है। कैसे लिखा है, अब ये थोड़ा सा और अलग है लेकिन सब उसी को डिनोट कर रहा है। देखो उसमें मैंने लेस देन का सिंबल लिया था, यहाँ मैंने जो है इसको कैसे लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर को सबसे पहले बड़ा और ये सबसे छोटा है, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में लिखा है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं किया है। और ये भी एकदम वैलिड है। ये क्या बोल रहा है कि ये इन सब से बड़ा है, ये इन सब से बड़ा है लेकिन इनसे छोटा है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है 2/3 की, अगर मैं बात पूछूं आपको तो क्या बोल रहा है 2/3 जो है 7/10 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि लेस देन का सिंबल है तो ये छोटा है। और इसके बारे में पूछो तो ये क्या बोल रहा है कि ये सबसे बड़ा है, तो ये इससे छोटा है और ये दोनों से बड़ा है, ये इन दोनों से छोटा है और इनसे बड़ा है, और ये सबसे छोटा है। तो ये देखो 7/10 जो है वो 63 है न्यूमरेटर, 63 जैसा न्यूमरेटर बड़ा किसी का नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा है। 63 से छोटा कौन है 54, तो 3/5 उसको, सॉरी 63 से छोटा है 60/90 तो उसका है 2/3 तो उसको यहाँ लिखा, उससे छोटा है 54 तो 3/5 उसको यहाँ लिखा, और सबसे छोटा है 8/15 क्योंकि इसका न्यूमरेटर 48 है। ठीक है, अब 25th क्वेश्चन देखो, 25th क्वेश्चन में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट करना था। तो हम लोग ने क्या किया, फटाक से डिनोमिनेटर को सेम करने का प्रोसेस जो है वो चालू कर दिया। 7, 14, 21, 42 इन सब का क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हो, एलसीएम कितना आया 42। अब फटाक से पहला फ्रैक्शन ले लिए 5/7 और 7 के टेबल में 42 सर्च करना शुरू कर दिए। तुरंत ही हमको मिल गया 7 6 42 होता है। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई लगा दिए, हमको क्या आंसर मिल गया 30/42। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन लिए 9/14, यहाँ 9/14 लिखा, 14 के टेबल में 42 फाइंड किए तो 3 टाइम्स में आया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 27/42 हो गया। ठीक है बेटा, 17/21 लिए, 21 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आएगा, अगर आपको नहीं आता है 21 का टेबल कोई बात नहीं, 21 को 41 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में ही लग जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए न्यूमरेटर में भी करना पड़ा और फाइनल आंसर हमको मिला 34/42। अब देखो 42 तो 42 है ही, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसको मैंने कैसे लिखा है, एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है सारा चीज़, सबसे पहले सबसे बड़ा। तो देखो 17/21 लिखा, तो इसका देखो न्यूमरेटर 34 है। 34 जैसा न्यूमरेटर चारों में से किसी में है? ये 30 है, ये 27 है, 31 है और ये 34 है, इसलिए सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद इससे छोटा कौन है? ये 31/42, तो वो यहाँ लिखा। उसके बाद इससे छोटा कौन है? 5/7। सबसे छोटा कौन है? 9/14। ठीक है बेटा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 26 नंबर। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वही करना है कि आपको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं तो हम लोग जानते हैं। अब अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने का सोच रहे हो तो आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगा बेटा। अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर करने का सोच रहे हो सेम, तो आप नहीं कर पाओगे। देखो मैंने यहाँ पे करके रखा है और आप देख सकते हो कि 23 का कोई डिवाइजर हमको नहीं मिलने वाला है और 7 का भी नहीं हुआ है और इतना सारा नंबर है। उधर कितना बार 2 और 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद 23 बचेगा। कितना बड़ा एलसीएम आएगा, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये जो है आपका 2 से 3 नंबर में आएगा, उसके लिए इतना टाइम दोगे तो आपका बाकी टाइम कहाँ जाएगा, आप वेस्ट कर दोगे उसमें। तो उसको अभी तक जो कर रहे थे हम लोग लॉन्ग मेथड से कर रहे थे। इसका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड भी है और वो शॉर्ट मेथड क्या है वो बताता हूँ। जैसे हम लोग ये सारा जो क्वेश्चन किए ना, इसमें सब में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग था। मेन तो हम लोग को डिनोमिनेटर से काम करना रहता है, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आपको अभी क्वेश्चन 1-2 गो आएगा, इसमें देखो कुछ चेंज है। इसमें पहले क्वेश्चन की तरह डिनोमिनेटर तो अलग है, इस सारे क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर भी नहीं अलग है, न्यूमरेटर अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। सारे फ्रैक्शन का देख रहे हो, 5, 9, 17, 31 अलग अलग न्यूमरेटर और 7, 14, 21, 42 अलग अलग डिनोमिनेटर। अब 26 क्वेश्चन में क्या है, 26 क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर तो सारे फ्रैक्शन का अलग अलग है, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो सेम ही है, न्यूमरेटर जो है वो सेम ही है। अब इसमें क्या हुआ, इसको थोड़ा सा एनालाइज करो। तुम लोग को फ्रैक्शन जो हम समझाए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, जैसे कि 4/5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 बॉक्स में से 4 बॉक्स फिल है। तुम बॉक्स के जगह खाना बोल सकते हो, तुम बॉक्स के जगह गिलास बोल सकते हो, तुम बॉक्स के जगह कुछ भी, कोई भी रियल लाइफ एंटिटी रखो समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो बॉक्सेस का क्वांटिटी है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, बॉक्सेस का क्वांटिटी। इस फ्रैक्शन के अनुसार 12 बॉक्स, इस फ्रैक्शन के अनुसार टोटल 23 बॉक्स है। इसमें 7 बॉक्स है, 9 बॉक्स है, 17 बॉक्स है, 50 बॉक्स है, ठीक है। और सब में एक ही एक 12 बॉक्स में से एक ही बॉक्स भरा हुआ है, 23 में से एक ही भरा हुआ है, ऐसे 50 में से एक ही भरा हुआ है। तो इसको आप बिना डिनोमिनेटर सेम किए भी निकाल सकते हो। कैसे? इसका एक ही ट्रिक है कि जिसका, अगर कंडीशन क्या है, अगर सारे फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला जो डैश के ऊपर जो लिखते हैं वो अगर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा और डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। अब आप बात समझ गए होंगे कि जो सबसे छोटा है डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ा होगा, तो उससे जो छोटा, उससे जो बड़ा न्यूमरेटर होगा, यानी 7 से जस्ट बड़ा जो होगा वो उससे जस्ट छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटा होगा। तो चलो देखो, यहाँ पे 12 है, 23 है, 7 है, 9 है, 17 है, 50 है। सबसे छोटा तो 1/7 लग रहा है, तो 1/7 मैंने लिख दिया। उसके बाद 7 के बाद कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है, लेकिन उससे जस्ट बड़ा 9 है, तो 1/9 लिख दिया। 9 से जस्ट बड़ा 12 है, तो 1/12 लिख दिया। उसके बाद जस्ट बड़ा 17 है, 1/17 लिख दिया। उसके बाद जस्ट बड़ा 1/23 है, वो लिख दिया। और लास्टली 1/50 है।
तो कितना जल्दी आ गया। लेकिन इस मेथड से प्रीवियस क्वेश्चन सारे नहीं बनेंगे। अगर ये कर दोगे तो तुम्हारा 0 नंबर तुमको सर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एलसीएम निकाल के करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ट्रिक काम करता है। वो ट्रिक इसमें इसलिए नहीं काम करेगा कि न्यूमरेटर भी उसमें अलग है। ठीक है, अब सर 27 नंबर देख लो। 27 नंबर में देखो न्यूमरेटर सबका 3 है, अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर खोजो। देखो 7 सबसे छोटा है, नहीं 4 सबसे छोटा है, तो 3/4 लिखे। उसके बाद 3/5 है, उसके बाद 3/7 है, उसके बाद 3/11 है, उसके बाद 3/13 है, उसके बाद लास्टली 3/17 है। ठीक है, 28 नंबर देखो, ललिता रीड्स 30 पेजेज ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेज। ठीक है, वो बोल रहा है कि एक लड़की है ललिता जो एक बुक पढ़ रही है जिसमें टोटल 100 पेजेज हैं, उसमें से वो 30 ही पेज पढ़ती है। ठीक है, लेकिन उसके अलग उसकी जो दोस्त है सरिता, वो जो है 2/5 ऑफ बुक पढ़ लेता है। यानी कि यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, आपको फ्रैक्शन में बोला है कि 2/5 क्या है, फ्रैक्शन में बोला है कि उस बुक का यानी 100 पेज के बुक का 2/5 वो पढ़ जाती है। तो हमको बताना है कि कौन ज़्यादा पढ़ता है। तो देखो ललिता का तो सीधा सीधा है कि वो 30 पेज पढ़ती है, तो लिख दिया ललिता रीड्स 30 पेज। अब उसका निकालना पड़ेगा सरिता का कि वो नंबर में कितना होता है, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो क्या करना है, सिंपल है। जैसे यहाँ 2/5 ऑफ द बुक पढ़ती है ना, तो टोटल बुक था 100, तो 100 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद कट कुट्टी करके जो तुम्हारा आंसर बचा वही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। तो देखो 2/5 किया, यहाँ काटम कुट्टी किए तो 5 से 20 टाइम्स में कट गया, उसके बाद 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 पेज हो गया। यानी कि ललिता 30 पेज पढ़ती है और सरिता जो 2/5 बोला था ऑथर, हम लोग निकाल लिए क्या, उसका एक्चुअल 40 पेज पढ़ती है। तो आपको बताओ कौन पढ़ता है ज़्यादा, सरिता पढ़ती है, तो वहाँ लिख दिए देयरफॉर सरिता रीड्स मोर। कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखो 29 देखो, रफ़ीक जो है वो एक्सरसाइज करता है 2/3 ऑफ एन आवर, मतलब कि 1 घंटे का 2/3 यानी 2/3 फ्रैक्शन में बोला है। और रोहित जो है वो 3/4 ऑफ आवर प्रैक्टिस करता है। 3/4 ऑफ एन आवर यानी 3/4 1 घंटे का प्रैक्टिस करता है। ये भी फ्रैक्शन में दिया है। फिर पूछता है कि कौन ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस कर रहा है। अब अगर ये मिनट्स में भी वो बताता तो हम बता देते, आवर में बताता तो और जल्दी बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन में बोला है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो भी चीज़ का फ्रैक्शन हो उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे वहाँ पे 100 पेजेज का बारे में बोला था कि 2/5 ऑफ बुक, देखो इनडायरेक्टली बोलता है 2/5 ऑफ बुक, तो आपको थोड़ा सा अपना IQ लगाना पड़ेगा कि बुक के बारे में बोल रहा है तो बुक के बारे में क्या बोल रहा है, पेजेज पढ़ी, तो बुक का टोटल पेजेज कितना है 100, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप बताओ कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 को रफ़ीक के केस में और 3/4 को रोहित के केस में। देखो हर जगह तो फ्रैक्शन के बाद आवर बोला है, आवर जो है वो कितना मिनट्स का होता है, 60 मिनट्स का, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको थोड़ा सा IQ अब लगाना होगा। ठीक है, तो हालांकि मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो 2/3 मल्टीप्लाई 60 हो गया, तो 3 से कटकुट्टी किए तो 20 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 40 मिनट्स। यानी रफ़ीक कितना एक्सरसाइज करता है 40 मिनट, और रोहित कितना करता है तो 3/4 इंटू 60, तो 2 से काटे यहाँ पे 2 टाइम्स में, यहाँ 30 टाइम्स में। ठीक है, और उसके बाद 90/20 आया और उसको फिर डिवाइड दिए तो 45। ऐसे आप लोग यहाँ पे 2 से ये 15 टाइम्स में भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये 40 मिनट्स करता है, ये 45 मिनट्स। तो ऑब्वियसली कौन सा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन सा ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, रोहित कर रहा है, तो लिख दिए रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। इन अ स्कूल 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 पास इन 6A। एक क्लास में एक स्कूल में एक क्लास है 6A मतलब 6 क्लास का A सेक्शन, और उसमें क्या है 25 में से 20 बच्चा पास हुआ है, और जो 6B क्लास था उसमें 30 में से 24 बच्चा पास हुआ है। तो हमको बताना है कि किसका बेटर रिजल्ट है। अब देखो ये यही बात हुआ कि आप
आपके पास 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में आप 3 सब्जेक्ट में पास किए, और किसी के पास, तुम्हारे भैया के पास जो तुम्हारे ग्रेजुएशन में पढ़ते होंगे या इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टरी का पढ़ाई करते होंगे, उनके पास 15, 20, 25 सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो मान लो 20 सब्जेक्ट है, उनमें से उन्होंने 12 सब्जेक्ट में ही पास किया। तुमने क्या हुआ, 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में पास किया, और उन्होंने क्या हुआ 20 सब्जेक्ट में 12 सब्जेक्ट में पास किए। तो हम पूछेंगे तुमसे कि किन का रिजल्ट बेटर है, तो तुम कभी भी थोड़ी बता पाओगे, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, मेजरमेंट करने का, जो ऑब्जर्वेशन करने का जो बेसिस है वो अलग अलग है। तुम्हारा 5 सब्जेक्ट है और उनका 20 सब्जेक्ट है, तो मेयर नंबर को देख के तुम नहीं बता सकते, लेकिन फ्रैक्शन की मदद से तुम बता सकते हो। यहाँ देखो, और आप लोग इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी वैसा ही केस है ना, एक में 25 बच्चा है, उसमें 20 पास किया, जैसे हमको अभी आपको एग्जांपल दिया, एकदम सेम चीज़ है यहाँ। और 30 बच्चे में 6B में 30 बच्चे में 24 पास किया। तो हम क्या करेंगे, जैसे तुम्हारे सर जो हैं, जब तुम लोग का फाइनल या मिड टर्म का या पीरियोडिक टेस्ट का जो कॉपी आता होगा, तो उसमें कैसे लिखते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास 3 मतलब कि 10 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें तुमको 8 आया, तो 8/10 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। वैसा ही कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है। 25 बच्चे में 20 बच्चा पास हुआ, तो फ्रैक्शन में वैसे ही लिखते हैं, 25 डब्बे में 20 डब्बा भरा हुआ है, तो 25 बच्चे में 20 बच्चा पास किया, तो 20/25 लिखेंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए तो 4/5 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लाए। फ्रैक्शन के मदद से हम लोग ये पता करेंगे कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि मेयर नंबर से हम नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिस अलग अलग है। एक में 25 बच्चा है, एक में 20-30 बच्चा है। अगर दोनों में 25 रहता तो हमको फ्रैक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ता। अब रिजल्ट ऑफ 6B में क्या हुआ, 24 में से 30 है, 24/30 कटकुटी करके देखो, 2 से ऊपर काटे 12 टाइम, नीचे 15 टाइम, फिर 3 से काटे ऊपर 4 टाइम, फिर 5 टाइम। दोनों का देखो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया फ्रैक्शन का, वो 4/5 आया। इसका मतलब क्या है, भले ही दोनों का पास बच्चा अलग अलग किया है, इसमें 20 बच्चा पास किया है, इसमें 24 बच्चा पास किया है, लेकिन अगर तुम उसका परफॉर्मेंस देखोगे तो दोनों क्लास इक्वली परफॉर्म किया है। इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा, वो सेक्शन हैज़ परफॉर्म इक्वली। अब आप जो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि आप 5 बच्चे से 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट में पास किया, और आपके भैया जो डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं वो 20 सब्जेक्ट में से 12 सब्जेक्ट में पास किए। आप ये बताओ कमेंट्स में कि उसका आंसर क्या आएगा, किन आपके भैया ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, या आप परफॉर्म कर रहे हो, या दोनों इक्वली कर रहे हो। I hope you are liking all these series of video. If you do like, please subscribe the channel and share with your friends.